Hello friends, today's article which we are going to analyze and discuss is published on Hindu on June 23rd. The article title is In Anti-Racism Fight, the Lyndon B. Johnson Option. It is written by Dipankar Gupta. He is an eminent sociologist and professor at the School of Social Science, Jawaharlal Nehru University. So again, this article is mapped in three points A, B, C, and what basically the article is saying that to fight anti-racism or racism, to fight racism, not only the goodwill but it should be backed by law also, particularly the racism what we find from police forces. So in that context, author has analyzed two approach. The first approach or first model, which was actually popularized by Martin Luther King Jr., he was very much influenced by Mahatma Gandhi. And the second model author has analyzed is given by Lyndon B. Johnson. He was a president of USA. So in this two approach of solving the problem of racism, particularly in USA, what we find there are two approaches. The first approach or first model is this, where basically we are invoking the goodwill of people, that racism morally it is wrong and people should not do this thing. So the inherent goodness of the human being, that is basically uh, make use of this thing, this model make use of that thing to bring about a change, more equitable society. So basically this model how try to convince other people through reasoning, through prayers and through goodwill. So the same approach we see that what Mahatma Gandhi has employed through non-violence. There also you see that Mahatma Gandhi's focus was that to reason with your enemy and show him the his wrongness, or show him that he's on wrong path. And Mahatma Gandhi used to do prayer, that also is well known. And more or less it is basically this whole philosophy is based on the inherent goodness of human being, and that has to be brought to the fore for solving the problem of racism in US society. And this model got little tracking nowadays because we see that white people also participated in protest of that recent killing of George Floyd. So with the participation of white people, and there are many condemnation, self condemnation also, video also popular in social media, where they white people have made the video and they condemned themselves and declare that this racism problem is inherent or deep rooted in white society. So what we are seeing that this model or this approach of Martin Luther King, where the participation of white people and their self condemnation of being racist is used to justify that okay, this approach is okay because now white people are also thinking that they are racist, and this way we are solving the problem because they accept their fault, they accept that they have done some injustice. So in that context, what author is saying that this alone is not sufficient, because with this approach you can ban certain things, like you can ban what in policing activity, particularly you can ban chokehold, that white and that black African person was killed basically through chokehold. So what you can suggest, that certain measure you can suggest, that okay, to ban chokehold or defunding
but this deep rooted problem of racial bias cannot be solved by a few goodwill gesture or participation of white people in protest. This whole thing, this goodwill gesture has to be backed by law, particularly from policing point of view. So in that context, author has analyzed this Lyndon B. Johnson model. He was a USA president and he took great risk, and through lot of effort he passed the Civil Rights Act in 1964. So you can see that this was established at that time also. This civil rights, particularly American African people, has to be given, but in general society accepted this thing. But not only society accepted, but it was backed by backed by law also. So similarly, for police force, not only we have to rely on individuals' goodwill, but we need to have a legal provision which act as an impediment for unjust racial behavior by police force. So that कि पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है खासकर अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, विच इज बेस्ड ऑन रेशियल देयर प्रिजुडाइस, उस चीज के लिए हमें एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में अवेलेबल हो, जिससे उस लीगली हम उसको काउंटर कर सके। तो यहाँ पर दो अप्रोच हम देख रहे हैं। पहला अप्रोच लोगों की गुडविल को कैटर करता था, लोगों की गुडविल के ऊपर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता था। दूसरा अप्रोच ये है कि पहला इसके अलावा एक लीगल बैकिंग भी रहती थी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने रेशियल प्रेजुडाइज की वजह से कोई वायलेंट एक्ट किया है तो ही विल बी पनिश्ड, एंड फॉर दैट लीगल प्रोविजन वाज मेड। तो ये लीगल प्रोविजन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लॉ है यूएसए में, खासकर जो पुलिस के द्वारा जो वायलेशन हो रहा है बेस्ड ऑन रेशियल प्रेजुडाइज, वो जो कई सारे केसेस में स्टडी में ये पाया गया है कि नो इफेक्टिव और कमेंसुरेट पनिशमेंट वाज गिवन टू पुलिस फोर्स फॉर वायलेटिंग or for violence or for showing racial behavior। इसमें बहुत सारे चीजें आपको आर्टिकल में लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो। और ये भी आर्टिकल फोकस करता है कि किस तरीके से जो एक तरीके का कंपैरिजन है बिटवीन अमेरिकन और यूरोपियन पुलिस फोर्स के बीच में, और यहाँ पर देखा जाता है कि क्यों अमेरिकन फोर्स compared to European force, क्यों they are more prone to shooting or violence। तो उसमें एक ट्रेनिंग का पार्ट निकल के काफी आता है। this is captured here, I'll just read it for you, that this difference between the American and European police in the use of gun is primarily because of better training. In the US, police training is on an average for 19 weeks, which is unthinkable by European standard. In Germany, for example, it is at least 130 weeks. In North Carolina, US, it takes 15-28 hours for one to be a licensed barber, but only 278 hours to be a police officer. So you can see here कि यहाँ पर जो एक फोकस है, जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग है और जितना उस पर टाइम और एनर्जी दिया जा रहा है, वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट है अमेरिका में एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री में। इसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जो पुलिसिंग है इज मच बेटर और उतनी वायलेंस प्रोन नहीं है जितना कि हम अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में पुलिसिंग काफी मिलिटराइज्ड वे में पुलिसिंग होती है और दे आर प्रोन टू फायर और रिसोर्ट टू फायरिंग, ठीक है।
और उसकी वजह से काफ़ी किलिंग भी होती है, और मोस्टली जो विक्टिम होते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। तो आर्टिकल का कहना ये है कि हमको अमेरिकन जो पुलिस है उसकी ट्रेनिंग और उनको सेंसिटाइज करना, और उसके साथ में हमको लीगल इम्पेडिमेंट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि केवल हम हार्ट के या आपकी खुद की गुडविल के आधार पे हम हम रेसिज्म से फाइट नहीं कर सकते हैं। वी शुड हैव ए बैकिंग ऑफ लॉ आल्सो, बिकॉज अगर लॉ उसके पनिशेबल बना देता है तो पीपल विल आल्सो somehow change their heart. So this is the first analysis of Hindu article. The second article which I will go, promote people power against COVID-19. This article is written by K. Srinath Reddy, again published on Hindu on same date, June 23rd. So this article is mapped by me in ABC point, and what the movement here you will find that the article or the author is saying that we need to have a change of approach to fight COVID-19, and change of approach कैसे होना है इसमें बाई मोर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, कि आपको कम्युनिटी को हमको ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, क्योंकि गवर्नमेंट या हेल्थ सेक्टर की लिमिट के बाहर की चीज़ें हैं जिसमें कि उनके ऊपर ही रिलाई करने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। तो उसमें एक पॉइंट, पहले अगर इसे एनालाइज करें तो एक पॉइंट निकल के आया कि अब चूंकि इतनी तेजी से भारत में स्प्रेड हो रहा है तो समहाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए, यू कैन रीड इट, कि हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन के लोग उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, उस वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि एक नेचुरल उनमें उसके वायरस के प्रति एक एंटीबॉडी बन जाती है, और वो वहां पर वो वायरस का फर्दर स्प्रेड होना रुक जाता है। तो ये जो इसके ऊपर में एक चूंकि स्प्रेड इस तरीके से हो रहा है, इस तेजी से हो रहा है, और समाउ मीडिया इसको कह रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, इसको ऑथर इस पॉइंट से एग्री नहीं करता है। ऑथर का मानना है कि अभी हम उस हर्ड इम्यूनिटी के लेवल के थ्रेशोल्ड के लेवल पे से बहुत दूर हैं, और हम इस तरीके से चीज़ों को अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने नहीं दे सकते हैं। वी शुड नॉट बिलीव और ट्रस्ट दैट हर्ड इम्यूनिटी विल बिल्ड अप समडे, और उसके वेट में हम चीज़ों को हाथ से निकल जाने दें। तो उसके लिए चैलेंजेस इस दूसरे पॉइंट में इसको काउंटर किया गया है। तो दूसरे पॉइंट में ऑथर एनालाइज करता है कि हमारे पास चैलेंजेस मल्टीपल लेवल पे हैं। पहला तो ये है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रेड जोन है, जहां पर कि ये वायरस अफेक्ट कर चुका है कुछ लोगों को, उस कंटेनमेंट जोन में फर्दर स्प्रेड को हमको रोकना है। और भारत के बहुत सारे रीजन है, पर्टिकुलरली विलेज एरिया या नॉर्थ ईस्ट के एरिया, जहां पर ये वायरस पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है, कुछ ही पॉकेट्स में है, उतना कंपेयर टू जो मेट्रो सिटी है उसके हिसाब से वहां पर स्प्रेड नहीं है। तो उन्हें भी हमको वहां पर स्प्रेड होने से रोकना है, जो कि समहाउ नॉट अफेक्टेड एरिया है। तो ये दो चैलेंज है कि जहां पर ये वायरस पेनिट्रेट कर गया है वहां पर फर्दर रोकना है, और जहां पर ये पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है, जिस एरिया में पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है उस एरिया में उसको घुसने ना देना। तो ये जो चैलेंज है, इसके लिए अभी तक का जो हमारा अप्रोच था कि बेसिकली गवर्नमेंट सारी चीज़ों को ड्राइव कर रही थी कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एवरीथिंग, पॉलिसी, गाइडलाइन, एवरीथिंग। तो वो ठीक भी था शुरुआती लेवल में, क्योंकि लोगों में एक अवेयरनेस नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि क्या करना है। लेकिन नाउ फेयरली पीपल आर, एवरीबडी इज अवेयर कि व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। तो इसमें इस सिचुएशन में हमें एक डिफरेंट अप्रोच लेके आना है।
क्योंकि पहला जो अप्रोच हमने देखा था कि इट वाज मोस्टली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट और पीपल बेसिकली डिस्कनेक्टेड थे, पीपल को बताया जा रहा था कि आपको ये करना है, पीपल का पार्टिसिपेशन उसमें कुछ खास नहीं था, क्योंकि इट वाज मोस्टली गवर्नमेंट ड्रिवन था और गवर्नमेंट के रिसोर्स से ही हम इसको हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब इस चीज को लेके जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, इस अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है। तो ये चेंज किस ऑथर का सजेशन ये है कि चेंज ये है कि अब पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है हमको। अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट वाज इन द ड्राइविंग सीट, अब पीपल और कम्युनिटी शुड बी इन द ड्राइविंग सीट टू फाइट कोरोना पेंडेमिक। अब पीपल का पार्टिसिपेशन कम्युनिटी लेवल पे होना है। तो हम देखते हैं कि भारत में कई तरीके की कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं इसको फाइट करने के लिए। तो पंचायत है, सभी विलेजेस में पंचायत रहती है, या फिर आपका म्यूनसिपैलिटी लेवल पे अगर टाउनशिप है तो वो पंचायत के लेवल से उसको हो सकता है। एनसीसी या एनएसएस कैडेट्स रहते हैं, उनके थ्रू, क्योंकि ये यंग रहते हैं, उनमें वैसे भी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, तो दे आर वेल प्लेस्ड टू फाइट, मोर एनर्जी, मोर इम्यूनिटी। और हम एक अच्छा पूल बना सकते हैं स्कूल एजुकेटेड वॉलेंटियर्स का, जिनको फेयरली आइडिया रहता है हेल्थ, या वो प्रॉपरली कन्वे कर सकते हैं। तो उनमें एक कम्युनिकेशन स्किल रहती है, एक फेयर गुड अंडरस्टैंडिंग रहती है वायरस को लेके, और ऐसे वॉलंटियर्स की एक हम कम्युनिटी बना सकते हैं। फिर इंडिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस हैं, बिजनेस एसोसिएशन है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में कई तरीके के एसोसिएशन हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट ने अनटैप्ड हैं, टैप नहीं की हैं। तो जब हम लोगों को फोरफ्रंट में लाने की बात करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग ग्रुपिंग्स में हैं। तो जो भी ग्रुपिंग्स लोगों की हैं, और भी इसके अलावा कई तरीके की ग्रुपिंग हो सकती है बेस्ड ऑन रीजन, लैंग्वेज। आप कहीं पर भी किसी सोसाइटी में देखो तो इस तरीके की ग्रुपिंग्स, आपको कई तरीके की ग्रुपिंग्स मिलती हैं। ये एक तरीके से सेकुलर और न्यूट्रल ग्रुपिंग है, लेकिन आप रिलीजियस लैंग्वेज ग्राउंड पे भी आप ग्रुपिंग देख सकते हो, कई एनजीओज को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग को हमको कैटर करना है, इनको पार्टिसिपेशन में कोविड-19 को फाइट करने के लिए इनका पार्टिसिपेशन हमको इन्वॉल्व करना है। और इस ग्रुपिंग के कई सारे रोल हो सकते हैं, जैसे कि ये अपनी ग्रुपिंग में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, ये सर्विलेंस का काम कर सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कौन कैरियर हो सकता है वायरस का। अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड मिलता है तो उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये टेस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, और फॉलो अप एक्टिविटी जैसे डिटेंशन हो गया उस पर्सन का, या क्वारंटाइन हो गया। तो उसमें कई तरीके के मैरिड एक्टिविटी हैं जो कि एक सपोर्ट बेस के लिए कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर में जो, या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर या सोशल सेक्टर के ऊपर में जो बर्डन पड़ा है वो रिलीज होगा, और ये मोर पार्टिसिपेटरी बनेगा, लोगों में एक साथ में काम करने की फीलिंग आएगी। तो इसके सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, और ये एक पार्टिसिपेटरी मूवमेंट बन जाएगा कोरोना से फाइट करने के लिए। और पर्टिकुलरली ऑथर ये भी सजेस्ट करता है कि शॉर्ट टर्म में अगर स्पेशलाइज्ड सर्विस की हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स की, तो जो कि मतलब जो इस फील्ड में ट्रेंड नहीं है वो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना ले, जो कि शॉर्ट टर्म में मेडिकली ट्रेंड मेडिकल जैसे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेस, उनको इंगेज कर सके फॉर ए शॉर्ट पीरियड। रिटायर्ड डॉक्टर हो गए या फिर फाइनल ईयर के मेडिकल के स्टूडेंट हो गए, तो इस तरीके से हम एक कमीशन बना सकते हैं जो कि शॉर्ट सर्विस के लिए है। तो ओवरऑल आर्टिकल का फोकस ये है कि अब इसको कोरोना की जो फाइट है
ये कम्युनिटी के बेस्ड लेवल पे होनी है और इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ना है। और हमारे पास में कई सारी ग्रुपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसको हम टैप करके और उनको डिफरेंट एक्टिविटी असाइन करके हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। दिस कंक्लूड माय सेकंड एनालिसिस ऑफ हिंदू आर्टिकल। आई होप कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प हुआ होगा। धन्यवाद।